Hello everyone. So let us discuss the first component of fundamental analysis, that is economy analysis. As I have told you in the last video that fundamental analysis make use of EIC approach, that is economy, industry and company analysis. In this part of the video, I will be discussing the detailed explanation of economy analysis. So let us discuss this. So see, as I have told you in the last video, fundamental analysis makes in-depth analysis of a company's security where we expect a long run or you can say a long term valuation, जहां पर हम कहते हैं कि जो कंपनी का जो शेयर है उसकी जो फेयर वैल्यू है वुड बी इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू इन लॉन्ग रन. एंड फंडामेंटल एनालिसिस जो है हमें हेल्प करता है टू फाइंड आउट वेदर द सिक्योरिटी is undervalued or overvalued. Since we are talking about long term, so the first component in this comes is economy analysis, where we talk about GDP, where we talk about inflation, unemployment, employment. ठीक है. And again, it makes use of industry, so we can talk about nature and type of industry, government attitude towards industry, and if respect to company, we can talk about company sale, growth potential, that would be a part of fundamental analysis. So in this particular video, we'll talk more about economy. So let us read. Fundamental analysis involves in-depth analysis of all possible factors having a bearing on company's profitability and future prospects, and hence on share price, theoretical or fair price. Fundamental analysis forecasts, among other things, future level of economy, GDP, future sales, and earnings of the large number of industries and earnings of large number of companies. ठीक है. So अब फंडामेंटल एनालिसिस में आगे आप चेक कीजिए. आई व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट EIC अप्रोच. सो लेट अस सी द वेरियस फैक्टर्स ऑफ इंटरेस्ट in fundamental analysis can be broadly classified into three categories. इकोनॉमी वाइड फैक्टर्स, जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है, दैट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स, इंडस्ट्री वाइड फैक्टर्स एंड कंपनी वाइड फैक्टर्स. हेंस वी हैव इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस एंड कंपनी एनालिसिस. तो इसी को हम बोलते हैं EIC. जनरली हमारा फॉर्मेट भी ये होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी इवेल्युएट इकोनॉमी, then we evaluate industry, and then we evaluate a particular company. So this is top down approach. Top down approach means economy, industry and company. The top down approach of fundamental analysis is also referred to as EIC framework, where E implies economy, I implies industry and C implies company level analysis. So what we have talked about: EIC framework analysis, economic analysis, industry analysis and company analysis. Economy or economic, it is more or less same. There is no difference. नाउ जैसे आपने बोला कि टॉप डाउन अप्रोच में हम वी फॉलो EIC, वी फर्स्ट गो फॉर इकोनॉमी, देन इंडस्ट्री एंड देन कंपनी. तो फंडामेंटल एनालिसिस हैव टू अप्रोचेस, दैट इज टॉप डाउन अप्रोच वी हैव जस्ट डिस्कस्ड एंड बॉटम अप अप्रोच. बॉटम अप अप्रोच मींस वी फर्स्ट इवैल्यूएट कंपनी, देन इंडस्ट्री एंड देन इकोनॉमी. तो बॉटम अप अप्रोच ना इतना कोई यूज में नहीं लेते, वी जनरली फॉलो टॉप डाउन अप्रोच. तो सी, let's discuss top down approach. Again, we generally perform fundamental analysis using this approach only, where we first evaluate economy, then industry and then company. Why? Because top down approach focuses more on macro factors. Macro factors basically means economy as a whole, industry as a whole. So let us see. Top down approach is widely used to perform fundamental analysis. With this approach, the financial analysts are first involved in forecast for the economy, in making forecasts for the economy, then for the industries, and finally for the companies. The industry forecasts are based on the forecast of economy. Why? Because economy is at large. Then in economy there exists an industry. So पहले economy, then we forecast for industry, and further a company forecasts are based on economy एज वेल एज कंसर्न इंडस्ट्री. भाई अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी का वैल्यूएशन कर रहे हो तो बेसिकली वो किसके फोरकास्टिंग से किसकी फोरकास्टिंग हेल्प करेगी उसमें? इकोनॉमी में क्या अभी करंट सिनेरियो है, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए कितना फेवरेटिज्म है, तो ये सब मैटर्स करते हैं. तो इसलिए कंपनी एनालिसिस वी डू एट लास्ट. तो देखिए इसमें लिखा हुआ है इट हैज मोर फोकस ऑन मैक्रो फैक्टर्स. सो दैट इज टॉप डाउन अप्रोच.
तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है, व्हाट आर द अप्रोचेस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस. सेकंड कम्स बॉटम अप अप्रोच. जनरली वी डोंट फॉलो बिकॉज ऐसा कभी रेयरली ऐसा होगा, पहले हम कंपनी का एनालिसिस कर लें, फिर वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री, देन वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी. नो, लेट्स से इंडियन इकोनॉमी. So first of all, we will see the future of Indian economy, and if Indian economy is booming up, whether this particular industry moves towards in positive correlation with the economy or not. So first of all, it's important to do economy, then industry, and then company. अगर आप उल्टा स्टार्ट करते हो, CIE अप्रोच फॉलो करते हो, पहले कंपनी, आपने कंपनी एनालिसिस कर लिया, फिर बाद में आपको पता इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस या आउटलुक तो पॉजिटिव नहीं दिख रहा, तो ये थोड़ा वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स होती हैं, तो इसका कोई यूज नहीं होता. तो देखिए, in case of bottom-up approach, the fundamental analysis forecasts the prospect of companies first, then for the industries, and in the last forecast for economy. Such bottom-up forecasting may unknowingly involve inconsistent assumptions. Forecast of the economy is of no use if it is done after company forecast, because ultimately it is expected cash inflows from the company's share that will be used in finding out the intrinsic value of the share. It has less focus on macro factors. तो इसीलिए कहते हैं कि भाई आप कभी भी किसी कंपनी का भी फोरकास्ट कर रहे हो, तो उसमें आप क्या आउटलुक देखोगे, इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करेगी, इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म करेगी, उसी के बाद आप कंपनी का एनालिसिस करोगे, तो यू विल फाइंड आउट द राइट प्रोडिक्शन. ठीक है, तो ये हमारी दो अप्रोचेस थी, टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच. तो जस्ट वी हैव टॉक्ड EIC फ्रेमवर्क is nothing but top down approach we follow, तो इसमें सेम ही लिखा हुआ है. EIC framework is the top down approach of fundamental analysis wherein an analyst makes a forecast about the economy by factors first, then performs industry analysis, and finally company level analysis. So now we'll be talking about economy analysis. So let us discuss. So see, economic analysis is nothing but if we talk about the factors influencing the economy, stock markets, or the current markets. Basically, we talk about macro factors such as GDP, growth rate, inflation, okay, interest rate, balance of payment. So that all comes under economic analysis. तो देखिए, economic analysis is the study of various economy-wide factors influencing stock market, that is gross domestic product, growth rate, inflation rate, interest rate, exchange rate, balance of payment, fiscal deficit, and budgetary performance, infrastructure, etc. Economic analysis is a useful tool to understand the general direction of economy and deciding about the right time to invest. भाई जैसे मैंने आपको बताया, economy will tell us whether the Indian economy future is positive or there would be a slowdown. So economic analysis is the first point where we make an analysis about the जनरल डायरेक्शन की मार्केट मूव कहाँ कर रहा है. ठीक है, दिस इज पर्टिकुलरली डन बाय लार्ज एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स whose portfolio comprises of securities from across the number of countries, and we generally make comparisons about Indian economy with other countries economies, or maybe from the past or the future prospects of the economy. So we make an economic analysis. तो जो जो फैक्टर्स हमने इकोनॉमिक एनालिसिस में पढ़े थे, उसमें फर्स्ट आया जीडीपी. दैट इज जीडीपी जनरली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है. ये ग्रोथ रेट आई हैव मेंशन्ड हियर जस्ट बिकॉज जीडीपी से वी जनरली मेजर द ग्रोथ रेट. ठीक है, so you can put a bracket on GDP growth rate. तो GDP क्या होता है? Basically the total value of goods and services produced in an economy during a given period or during a year. और हम GDP में ग्रोथ कैसे मेजर करते हैं? अगर GDP बढ़ रहा है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रही हैं, तो वी जनरली टेक इट एज अ पॉजिटिव साइन एंड वी प्रेफर दैट द कंपनी वुड or sorry that the economy would rise, and if the economy would rise, the industry would be having you can say positive outturn, and the company would follow the same. So see, GDP is gross domestic product is the total value of goods and services produced in an economy during a given period. Growth rate in GDP is important indicator for overall state of the economy. Therefore, fund managers and institutional investors carefully examine GDP growth rates before deciding about the countries where investment is intended, or where the investment should basically you can say should take place. Second comes inflation. Inflation is nothing but
which basically erodes the purchasing power, महंगाई जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, because higher the inflation, lower would be the purchasing power. So basically what happens is inflation erodes the purchasing power of money, and therefore in times of inflation, nominal return does not reflect true or real earnings from an asset. Increase in inflation rates also adversely affects product demand, and hence corporate profitability declines in जनरल. तो देखिए जनरली क्या होता है, नॉमिनल रिटर्न डज नॉट रिफ्लेक्ट. नॉमिनल रिटर्न मतलब जैसे कई बार होता है आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, 10% का रिटर्न था, लेकिन उस टाइम पर जो इन्फ्लेशन थी लेट्स से 4% थी. अब अब फॉर एग्जांपल अब 6% इन्फ्लेशन हो गया, लेकिन इंटरेस्ट यू कैन से रिटर्न रेट 10% ही है. तो नॉमिनल रिटर्न तो हो गया कि भाई जिसके अंदर इन्फ्लेशन का आपने एडजस्टमेंट नहीं किया, लेकिन जो हमारी रियल परचेजिंग पावर, फॉर एग्जांपल पहले 100 रुपीज में मैं 10 चॉकलेट्स बाय कर पाता था, लेकिन अब 100 रुपीज में मैं 8 चॉकलेट्स बाय कर पाता हूँ. तो इट मीन्स मैंने इन्फ्लेशन का जो यू कैन से एडजस्टमेंट था वो रिटर्न में कर दिया कि 100 रुपीज में आई एम एबल टू बाय मोर अर्लियर. तो नॉमिनल रिटर्न तो वो हो गया कि जिसमें आप 100 रुपीज में 10 बाय करते थे, और रियल रिटर्न अब क्या है कि चॉकलेट तो भी लेट से 100 रुपीज की मिल रही है, बट जो हमारी परचेजिंग पावर थी वो कम हो गई. पहले वी यूज टू बाय 10 पीसेज, नाउ वी कैन ओनली बाय 8 पीसेज ऑन in that 100 rupees only. So that is inflation. So inflation also plays a very important role. Then interest rates. So basically, generally, if the bank increases the interest rate, it means tighter monetary policy. जैसे क्या कहते हैं ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया बैंक का, तो इट मीन्स द कॉस्ट ऑफ बोरिंग हैज इंक्रीज. जब कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंक्रीज करती है तो आप देखते हो रियल एस्टेट डाउन होता है, बिकॉज अगर इंटरेस्ट बैंक ज्यादा चार्ज कर रहा है तो लोग लोन लेना पसंद नहीं करते. तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है मार्केट में. तो देखिए, हायर इंटरेस्ट रेट इज अ सिंबल ऑफ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी and increases the cost of borrowing, which in turn lowers investment and business expansion. Thus, interest rates are negatively related with stock performance in an economy. Next comes infrastructure. Generally, if you have a good infrastructure, sound infrastructure, generally institutional investors, big companies prefer to invest in those economy. And if when they prefer to invest, so it's a booming sign, growing sign for the economy. So it's a favorite, or you can say favorable condition. So see, an economy with sound infrastructure facilities such as power, telecommunication, roads and transport is always preferred by institutional investors. Good infrastructure is necessary for continuous and growing production level. ठीक है, for continuous and growing production level. Next comes employment. Employment is just basically, you can say, if the people are more employed, it means healthy sign for economy. But unemployment rate means the people who could not find jobs, or you can say percentage of total labor force in which the people are not able to find jobs. So देखिए, the unemployment rate is the percentage of total labor force which is yet to find jobs. The unemployment rate measures the extent to which an economy is operating at full capacity. Higher unemployment rate is a sign of contracting. It means the economy is not growing, it is contracting, and hence adversely affects stock performance or company performance or industry performance. Last in this comes is government economic policies. अब देखिए, गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज बेसिकली इट्स मोर अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी. फिजिकल पॉलिसी talks about the tax structure. Monetary policy talks about basically for interest rates and money supply. And it also, this government economic policies includes what is the attitude of government towards foreign trade policy. So see, in order to understand the future direction of economic activity, it is necessary to analyze the government economic policies such as fiscal policy, monetary policy, and foreign trade policy, etc., which directly affects industry and companies' performance. Fiscal policy, especially tax policy of the government, has direct relationship with personal disposable income and corporate profitability, because higher the tax, lower would be the profitability for individual as well as for companies. Monetary policy, especially changes in interest rate, can influence interest investment and savings, especially in short run. जैसे भी हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है. People just do not want to buy, you can say, real estate, houses, cars, because the interests are too high.
तो ये भी एक क्या होता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है. So basically, these are the six factors where we are talking about economic analysis: GDP, inflation, interest rates, infrastructure, employment, and government economic policies. So now let us discuss about the इकोनॉमिक फोरकास्टिंग. इसके कौन कौन से टूल्स होते हैं या कौन कौन से आप कह सकते हो अप्रोचेस होती हैं इकोनॉमिक एनालिसिस को पूरा करने के लिए. So now let us discuss about this economic forecasting. See, whatever we have learned in basically economic analysis, that can be predicted with the help of these three forecasting techniques or approaches. First is trend analysis. Trend analysis is a basic form of economic indicator where we generally check about the trend of GDP over 5 years. कि इन्फ्लेशन का क्या ट्रेंड है, लास्ट 5 इयर्स की इन्फ्लेशन क्या है, उसका ट्रेंड क्या है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, इंटरेस्ट रेट कैसे चल रहा है ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स. तो ट्रेंड एनालिसिस इज वेरी बेसिक वन. ठीक है, तो इट इज अ बेसिक इकोनॉमिक इंडिकेटर सच एज जीडीपी ग्रोथ रेट, inflation, interest rate, exchange rate, etc. Then comes probabilistic forecasting. It is more based on probability, where the analyst makes prediction about, जैसे वो होता है ना कि भाई इकोनॉमी के ग्रो करने के क्या चांसेस है, 40% है, एवरेज होने के क्या चांसेस है, 30% है, लेट से डिक्लाइन होने के क्या चांसेस है, 30% है. तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिसाइड करते हैं और उसके बेसिस पर भी डिसाइड द ग्रोथ रेट कि मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी. तो वी मेक यूज ऑफ दिस फोरकास्टिंग. तो देखिए, यूजिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच, द एनालिस्ट में फोरकास्ट सेवरल इकोनॉमिक सिनेरियोज along with their respective probability of occurrence. तो उनके क्या चांसेस है कि कितना अकर होगा. लास्ट कम इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग. इट इज मोर ऑफ अ स्टैटिस्टिकल मॉडल वेयर हम कुछ फैक्टर्स को बेसिकली आप कह सकते हो कुछ फैक्टर्स को कुछ वेरिएबल्स की हेल्प से फोरकास्टिंग करते हैं. तो देखिए, एन इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग इज अ स्टैटिस्टिकल मॉडल used to forecast the level of certain variables known as endogenous variables. In order to make these forecasts, the model uses a number of exogenous or explanatory variables. For example, the level of next year's GDP growth rate may be related to the rate of investment and inflation rate. तो बेसिकली ये जैसे हम कई बार तो ना स्टैटिस्टिक्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वहां पर इनके डेटा को इकट्ठा करके we try to predict out the value, let's say value of GDP growth rate based on rate of investment and inflation rate. तो इकोनॉमी एनालिसिस अगर आपसे नॉर्मल पूछा जाएगा तो उसके वो 5-6 पॉइंट जो हमने डिस्कस किए वो हैं. अगर आप इसके अंदर पूछते हैं कि इसकी एनालिसिस हम करते कैसे इकोनॉमी की, तो उसकी ये 3 अप्रोचेस हैं. तो आई होप आपको इकोनॉमी एनालिसिस क्लियर हुआ होगा. सो based on this, in the next video we'll be discussing about industry analysis. But before industry analysis, you should be thorough with economy analysis. So thank you so much. Please like, subscribe and share our channel, and please also hit the bell icon so that you can get the notification of the new videos. Thank you so much. So now let us discuss about this economic forecasting. See, whatever we have learned in basically economic analysis, that can be predicted with the help of these three forecasting techniques or approaches. First is trend analysis. Trend analysis is a basic form of economic indicator where we generally check about the trend of GDP over 5 years. कि इन्फ्लेशन का क्या ट्रेंड है, लास्ट 5 इयर्स की इन्फ्लेशन क्या है, उसका ट्रेंड क्या है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, इंटरेस्ट रेट कैसे चल रहा है ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स. तो ट्रेंड एनालिसिस इज वेरी बेसिक वन. ठीक है, तो इट इज अ बेसिक इकोनॉमिक इंडिकेटर सच एज जीडीपी ग्रोथ रेट, inflation, interest rate, exchange rate, etc. Then comes probabilistic forecasting. It is more based on probability, where the analyst makes prediction about, जैसे वो होता है ना कि भाई इकोनॉमी के ग्रो करने के क्या चांसेस है, 40% है, एवरेज होने के क्या चांसेस है, 30% है, लेट से डिक्लाइन होने के क्या चांसेस है, 30% है. तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिसाइड करते हैं और उसके बेसिस पर भी डिसाइड द ग्रोथ रेट कि मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी. तो वी मेक यूज ऑफ दिस फोरकास्टिंग. तो देखिए, यूजिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच, द एनालिस्ट में फोरकास्ट सेवरल इकोनॉमिक सिनेरियोज along with their respective probability of occurrence. तो उनके क्या चांसेस है कि कितना अकर होगा. लास्ट कम इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग. इट इज मोर ऑफ अ स्टैटिस्टिकल मॉडल वेयर हम कुछ फैक्टर्स को बेसिकली आप कह सकते हो कुछ फैक्टर्स को कुछ वेरिएबल्स की हेल्प से फोरकास्टिंग करते हैं. तो देखिए, एन इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग इज अ स्टैटिस्टिकल मॉडल
used to forecast the level of certain variables known as endogenous variables. In order to make these forecasts, the model uses a number of exogenous or explanatory variables. For example, the level of next year's GDP growth rate may be related to the rate of investment and इन्फ्लेशन रेट. तो बेसिकली ये जैसे हम कई बार तो ना स्टैटिस्टिक्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वहां पर इनके डेटा को इकट्ठा करके वी ट्राई टू प्रेडिक्ट आउट द वैल्यू, लेट्स से वैल्यू ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट बेस्ड ऑन रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्लेशन रेट. तो इकोनॉमी एनालिसिस अगर आपसे नॉर्मल पूछा जाएगा तो उसके वो 5-6 पॉइंट जो हमने डिस्कस किए वो हैं. अगर आप इसके अंदर पूछते हैं कि इसकी एनालिसिस हम करते कैसे इकोनॉमी की, तो उसकी ये 3 अप्रोचेस हैं. सो आई होप आपको इकोनॉमी एनालिसिस क्लियर हुआ होगा. So industry analysis basically is done before company analysis. Why? Because it is better कि अगर आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले आपको ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उस इंडस्ट्री का या उसके क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, तभी आपको कंपनी की क्या होता है गुड रिपोर्ट यू कैन एक्सपेक्ट. ठीक है. इंडस्ट्री एनालिसिस बेसिकली हम किसके बेसिस पे करते हैं? जो हमने इकोनॉमी एनालिसिस किया था उसके बेसिस पर. अगर हम कहते हैं कि ओवरऑल एटीट्यूड ऑफ द इंडस्ट्री इज पॉजिटिव, तो हम जनरली ये एज्यूम करते हैं कि जो कंपनी होंगी वो भी मार्केट में पॉजिटिव रिटर्न्स देंगे, बिकॉज वो पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री है. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ट्रैवल इंडस्ट्री राइट नाउ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. तो अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए आगे आगे सेक्टर बूम है, तो उसमें जितनी कंपनीज होंगी, मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे कैन एक्सपेक्ट अ ब्राइट फ्यूचर. तो इंडस्ट्री एनालिसिस बेसिकली एक तो हमारे इकोनॉमिक एनालिसिस पे बेस करता है, और ये हमारे को क्या करता है, ओवरऑल जो इंडस्ट्री का सिनेरियो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है. तो देखिए, बिफोर डिसाइडिंग अबाउट द स्पेसिफिक कंपनी इन विच इन्वेस्टमेंट इज टू बी डन, एन इन्वेस्टर मस्ट गेट फेमिलियर विद नेचर, परफॉर्मेंस एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री टू विच दैट कंपनी बिलोंग्स. जो कंपनी हमें एनालाइज करनी है. Industry analysis is performed on the basis of the analysis for the entire economy. If the economy in general is expected to boom, then the overall scenario for all the industries is positive. Because अगर boom है, it means the economy will grow. So it means industries will also grow. However, the performance of all industries may not be same. Some industries may perform very well. Others may not catch up with the expected boom in the economy. Yes, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज वो डिपेंड करता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर कंपनी का क्या है और उसके खुद के प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, जो हम कंपनी एनालिसिस में डिस्कस करेंगे. अब हम देखिए, इंडस्ट्री एनालिसिस के हमारे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे को हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री. नंबर 1 इज नेचर एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्री, नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, लेबर कंडीशंस एंड ट्रेड यूनियंस. तो अभी हम एक एक करके इसमें डिस्कस करेंगे, बिकॉज इसके अंदर भी हमें कुछ हमारे को पॉइंट्स मिलेंगे डिफरेंट. तो लेट्स से फर्स्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर आ गया नेचर एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री. तो देखिए, इसके अंदर मैं आपको 2 इंडस्ट्रीज एक्सप्लेन करता हूँ बेसिकली. फर्स्ट इज साइक्लिकल एंड सेकेंड इज डिफेंसिव. देखिए, अब हमारी इंडस्ट्री कौन से नेचर की है. साइक्लिकल मींस जो मार्केट में बिजनेस साइकिल्स होते हैं, जिसके आप लोग कहते हो बूम, ठीक है, डिप्रेशन, या कुछ भी आप कहते हो एक्सपेंशन. तो जो उसके ब्याह पर काफी रिस्पॉन्ड करती है. अगर मार्केट में कंडीशन बूम होंगी तो ये कंपनीज भी अच्छा परफॉर्म करेंगी. अगर मार्केट में कंडीशन आप कहेंगे सिनेरियो डाउन साइड है, डिक्लाइन साइड है, तो ये कंपनीज भी उसी वे में रिस्पॉन्ड करेंगी डाउन साइड. इट मीन्स दे आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द इकोनॉमी कि मार्केट परफॉर्मेंस कैसा है. तो इसको हम बोलते हैं साइक्लिकल. डिफेंसिव सेकंड इसमें भी लिखा हुआ है, डिफेंसिव इंडस्ट्री. डिफेंसिव जो होता है, जो लेस रिस्पॉन्सिव होती है मार्केट कंडीशंस के, वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. तो जैसे मैंने आपको बताया, साइक्लिकल आर मोर रिस्पॉन्सिव टू द मार्केट कंडीशंस या बिजनेस साइकिल्स. तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है. अब आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, तो पहली टाइप इसमें आ गया साइक्लिक इंडस्ट्री. साइक्लिकल इंडस्ट्री में आया इंडस्ट्रीज विच आर मोर रिस्पॉन्सिव और लेस और सेंसिटिव टू द बिजनेस साइकिल्स are termed as cyclical industries. The performance of cyclical industries varies according to business cycles. During expansion or boom period, these industries outperform other industries because ये more respond करती हैं कि मार्केट में बिजनेस कंडीशंस या ओवरऑल एटीट्यूड मार्केट का क्या है. ठीक है. इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल्स, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा. तो इट मींस दीज कंपनीज रिस्पॉन्ड मोर जो हमारे मार्केट में सिनेरियो है उसके बेसिस पर. सेकंड इसके अंदर आया इसी का टाइप डिफेंसिव. डिफेंसिव मतलब विच आर लेस सेंसिटिव टू द मार्केट. ठीक है, या जो मार्केट में सिनेरियो चल रहा है ये उसके ब्याह पर उस वे में रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो थोड़ा डिफेंसिव प्ले करती हैं.
तो जैसे जनरली होता है, चाहे जैसे बूम हो, चाहे डिक्लाइन हो या डिप्रेशन हो, ग्रोथ हो, ये ओवरऑल इनका जो ओवरऑल मैकेनिज्म रहता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, इन कॉन्ट्रास्ट टू साइक्लिकल इंडस्ट्रीज, डिफेंसिव इंडस्ट्रीज growth rates are less sensitive to business cycle. These are industries producing goods and services, sales of which are least sensitive to the state of economy. Examples of defensive industries are pharmaceutical, ठीक है, then education, public utilities, etc. और these are food products also, ठीक है. So that is a part of defensive industries. Then we have another category. Second point, let us discuss about industry life cycle. तो देखिए इंडस्ट्रीज लाइफ साइकिल में वी हैव स्टार्टअप स्टेज, ग्रोथ स्टेज, maturity stage and declining stage. We have four parts in this. We'll discuss one by one. तो इसमें अब देखिए क्या हम इसमें डिस्कस कर सकते. See, the first stage in this comes is startup stage. Startup stage is nothing but when a new product और टेक्नोलॉजी इज इंट्रोड्यूस इन द मार्केट. इट मींस ये नया मार्केट में कोई प्रोडक्ट आया है. इट मींस अगर मार्केट में प्रोडक्ट अच्छा चला तो इसके ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है. और फर्म इसमें क्या ट्राई करती है, कंपनी क्या ट्राई करती है कि मैक्सिमम शेयर हम मार्केट में अपना, यू कैन से वी कैन एक्वायर. जनरली ये स्टेज थोड़ी सी न्यू होती है तो प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से कम होते हैं और कंपनी थोड़ा सा पैसा स्पेंड भी करती है एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे, सो दैट दे कैन कैप्चर द मार्केट. जैसे एग्जांपल इसके अंदर स्मार्टफोन्स आप कह सकते हैं. तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, दिस स्टेज is usually characterized by the introduction of new product or technology such as smartphones. At this stage, it is difficult to predict which firm will emerge as market leader because every firm tries to capture largest market share. At the firm level, profit margins are relatively low and demand is uncertain. In industries in startup stage, although promise higher returns, but are also very risky in nature because it is a new product in the market. Second comes in the growth stage where the company actually, you can say, booms or grows. So that is a part of growth stage, which you can say the company booms. तो ये इसको हम कंसोलिडेशन स्टेज भी बोलते हैं. यहाँ पर जो कंपनी का एक जो मार्केट शेयर होता है वो काफी हद तक ग्रो कर चुका होता है और कंपनी यहाँ पर हायर प्रॉफिट अर्न करती है और इन्वेस्टर्स भी इसमें क्या एक्सपेक्ट करते हैं, दैट दे कैन जनरेट हायर रिटर्न्स, ठीक है. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ स्टेज. तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, this is also referred to as a consolidation stage due to stable growth in the industry. Due to stable growth, companies may enjoy higher profits and therefore companies in growth stage industries promise higher returns to the investors. At the end of the growth stage, the product becomes very much commonly used and the growth rate starts declining, although पॉजिटिव. तो बेसिकली क्या होता है, ग्रोथ रेट के बाद जो ये बात कर रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट मेच्योरिटी. मेच्योरिटी मींस वी आर ऑन द पीक नाउ. भाई हम अपने पीक से थोड़ा सा क्या हो रहे हैं, पीक पे पहुंच चुके हैं. ग्रोइंग स्टेज में यू कैन से वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग द पीक एंड मेच्योरिटी स्टेजेस वी हैव रीच द पीक. तो इट मींस ऑलमोस्ट रीचिंग द पीक एंड वी आर एट पीक. सो देर इज अ माइन्यूट डिफरेंस इन द सेंस लाइक, जिसको हम जैसे मेच्योरिटी स्टेज को हम सैचुरेशन पॉइंट भी बोलते हैं. भाई इसके अगर आगे हम गए तो इसके आगे हम डिक्लाइन करेंगे और जब हम अपनी मेच्योरिटी पे पहुंच जाते हैं तो रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा हाई नहीं होते, स्टेबल रिटर्न्स जो है कंपनी एक्सपेक्ट करती है और कंपनी यहाँ पर जो मार्केट में मैक्सिमम शेयर हो चुका होता है उसको कैप्चर कर चुकी होती है. तो इट मींस स्कोप जो ऑफ ग्रोथ कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, बिकॉज वी आर ऑन द सैचुरेशन पॉइंट. अगर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो दैट वुड बी डिक्लाइनिंग ग्रोथ स्टेज. तो देखिए, ड्यूरिंग मेच्योरिटी स्टेज ऑल्सो द प्रोडक्ट डिमांड ग्रोस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट. At the end of this stage, the industry reaches a saturation point when the demand for the product reaches its maximum and stops growing. ये मैंने भी आपको समझाया. This stage is also characterized by stable returns, but the investor refer to exit once an industry reaches to maturity stage. Yes, investor के लिए ये stage होता है कि वो exit कर दे, because इसके बाद जो stage आएगी that would be डिक्लाइनिंग स्टेज. तो देखिए स्टार्टअप, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन, ये हमने आपको दिखाया. इट्स जस्ट लाइक अ रॉकेट विच इज गोइंग अप, देन अगेन इट इज इंक्रीजिंग, मेच्योरिटी, you have reached the peak and then you start decline. So declining stage where you can say negative growth rate,
फॉल इन सेल्स, ये सारे हमारे एग्जाम्पल होंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो यू कैन चेक दीज. So let us read it out this one. Industries during this stage face decline in product sales and hence negative growth rate. The profitability of all companies in general decline once the industry reaches this stage. Example of such industries in declining stage in India are at present include conventional cell phones, जो keypad, quotic keypad आप कहते हैं, and two wheelers maybe in the form of scooters because that position has been taken by scooty and most of the bikes. So that is a part of industry analysis specifically to, you can say, life cycle. Now let us discuss the further points. So see, third point in this comes is nature of product of the industry. तो देखिए सिंपल है, अगर आपका प्रोडक्ट जो है सीजनल है या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, तो सीजनल प्रोडक्ट्स की डिमांड एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर में होती है. अगर आपका प्रोडक्ट नेसेसिटी गुड है तो उसकी डिमांड ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर क्या रहती है, सेम. तो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो डिसाइड्स कि भाई हमारा ग्रोथ रेट और प्रॉफिटेबिलिटी, यू कैन से, कि कितना इम्पैक्ट करता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट. तो देखिए लिखा हुआ है द नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्री हैज अ बियरिंग ऑन इट्स ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी. If the product is seasonal and agricultural, for example, let's say sugar, its rate will depend on monsoon in a particular year. Why? Because अब जनरली क्या होता है कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, और उस सीजन मानसून का कैसा होगा, अगर उसमें प्रोडक्शन अच्छा हुआ सो इट मीन्स उसके जो रेट्स हैं उसके बेसिस पर डिपेंड करेंगे. देन आया नेचर ऑफ कंपटीशन, या आप मार्केट कंपटीशन आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोग परफेक्ट कंपटीशन कहते थे, मोनोपोलिस्टिक कहते थे, मोनोपोली कहते थे. तो जहां पर डिसाइड करता है कि नेचर ऑफ कंपटीशन क्या है. अगर आपका परफेक्ट कंपटीशन है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी लीस्ट होगी, ठीक है. मोनोपोली है तो आप क्या कहते हो, प्रॉफिट थोड़े से ज्यादा हाई होंगे. सो दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ नेचर ऑफ कंपटीशन. तो you can see it is important to understand the nature of competition in an industry, whether perfect competition, monopolistic, oligopoly, or monopoly. Companies in an industry with perfect competition have least profitability as compared to company in monopoly industry. For example, अब इसमें monopolistic example दे दिया, and IT industry in India has monopolistic competition. Now, what is monopolistic competition? Where there is a huge competition and product differentiation उसका एक part होता था. So, let us move on to next point. Industrial policy of the government. देखिए अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी ऑब्वियसली इंडस्ट्री को अफेक्ट करती है. भाई गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स द इंडस्ट्री. If government, let's say for example, right now government is favoring green energy, solar energy, so the government is having a quite positive attitude towards those particular industries. सो ऐसे ही गवर्नमेंट ने 1991 में जब एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की थी, तब गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन किया बहुत सारे सेक्टर्स में जो पहले पब्लिक सेक्टर्स के अंडर आते थे, जिसके कारण कंपटीशन बढ़ा और कंपनीज की एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो गई. सो लेट अस रीड आउट. तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री आल्सो अफेक्ट्स इट्स ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड hence performance. Since 1991, Government of India has followed liberalization and privatization policy, allowing private sector and foreign companies in a number of industries dominated by public sectors such as banking, insurance, and retail industries. This led to stiff competition as well as improvement in efficiency of good companies in these industries. So I think I have already told you कि जो एटीट्यूड और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, वो भी डिपेंड करता है कि कंपनी का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है वो कैसा होगा. और लास्ट पॉइंट जो हमारा इसके अंदर था, लेबर कंडीशंस एंड ट्रेड यूनियंस. तो देखिए अगर आपकी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है तो वहां पर जनरली आप एनालाइज करते हो लेबर कंडीशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन का कैसा स्टेक है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है. और अगर आपकी ऑर्गेनाइज्ड लेबर है या ट्रेड यूनियंस है तो वहां पर आप ये चेक करते हो कि भाई व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट, और what kind of relation you can say between manager and worker. So let's see. तो देखिए in case of labor intensive industries such as agriculture, mining and construction, it is important to analyze labor conditions, availability of cheap labor, and how strong is the trade union. ये मैंने ऑलरेडी बोल्ड मार्क किया हुआ है. और जहां मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको ज्यादा फोकस करना है तो आई हैव पेंटेड इट विद येलो, ठीक है.
Industries with organized labor or trade unions may face difficult times during worker management conflict. For example, मारुति लिमिटेड का इन्होंने एग्जांपल लिया, जिसका मानेसर में एक प्लांट था और उनको स्टिफ प्रोटेस्ट के कारण लॉकआउट करना वहां पड़ा because the trade unions were against the management. So see, Maruti Limited has to lock out its Manesar plant following a stiff protest by the trade union in the year 2012. So I hope आपको ये छह पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं यहाँ पे. So that is nature and type of industry, life cycle, nature of product, nature of competition, industrial policy, and labor conditions. That EIC stands for Economy, Industry and Company Analysis, where हमने पहले पढ़ा कि इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर हम इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे, जिसके अंदर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, जीडीपी इसको मेजर करेंगे. एंड इन इंडस्ट्री वी विल चेक अबाउट द नेचर एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडस्ट्री. जब हमारा वो फाइनलाइजेशन हो गया है, सो नाउ वी विल आइडेंटिफाई कि भाई दिस इंडस्ट्री लुक्स गुड फॉर इन्वेस्टमेंट. तो इस इंडस्ट्री में भी कौन सी कंपनी ऐसी है विच इज मोर which will give more profits or which will be more beneficial for investment. For example, अगर आपने कोई IT आपने चेक किया कि सारे पैरामीटर्स पे चेक करके IT इंडस्ट्री आने वाले टाइम पर बूम करेगी या ग्रो करेगी, तो आपने इंडस्ट्री एनालिसिस कर लिया, गवर्नमेंट वो इकोनॉमिक एनालिसिस कर लिया. नाउ द क्वेश्चन कम्स इज which IT company, whether it would be Wipro, HCL, Infosys. So you have to make analysis of company. So that is a company analysis. So see, at the bottom of EIC framework analysis is the company level analysis. Company analysis is the study of various characteristics of a company regarding its operating and financial performance and future prospects. Once an investor decides to invest in a particular industry on the basis of economic and industry analysis, it is important to select the company or companies in which investment is to be made. For example, जो मैंने अभी आपको समझाया, if an investor decides to invest in IT industry, the next step is to decide in which company, Infosys, Wipro, HCL or any other company. In fact, the estimation of future dividends and earnings from a company depends upon its past performance and managerial competence. तो देखिए, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो पहले भी चेक करते हो कि भाई कंपनी फ्यूचर में क्या रिटर्न्स देगी. फ्यूचर डिविडेंड मतलब हाउ मच द कंपनी विल रिटर्न, मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स और मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्राइस इंक्रीज. तो वो किससे पता लगता है? कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस से भी, और मैनेजर कितना जो उनका मैनेजमेंट है वो कितना कॉम्पिटेंट है. तो देखिए, द आउटकम ऑफ द कंपनी एनालिसिस इज एक्सपेक्टेड future cash inflow for the share of that company, which is used in determination of intrinsic value of the share of that company. जैसे आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पढ़ा है कि हम कभी भी जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो होता है कि कंपनी हमें फ्यूचर में ये रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इंक्रीज इन प्राइस, कैपिटल एक्विजिशन जिसको बोलते हैं, तो उसकी वैल्यू को हम आज प्रिडिक्ट करते हैं और इसके लिए हम प्रेजेंट वैल्यू का भी यूज कर सकते हैं. The intrinsic value of the share is then compared with prevailing market price, जो भी current market price है, to find out whether the share is undervalued or overvalued. तो आई होप आपको पता ही है कि जब हमारे को जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होती है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और हम कंपेयर करते हैं कि आज उसका प्राइस क्या है और हमारे अकॉर्डिंग आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है. अगर प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है और एस्टिमेशन प्राइस कम है तो इसका मतलब शेयर अंडर वैल्यूड है, और प्रेजेंट वैल्यू कम है और आज का प्राइस ज्यादा है तो ओवर वैल्यूड है. तो इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं. ये आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी स्टडी किया था. ठीक है. सो कंपनी एनालिसिस के लिए हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? वी कैन एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन बेसिकली फ्रॉम बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर्स की रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं, सोशल एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट चेक कर सकते हैं. तो ये वेरियस सोर्सेज है जहां से हमारे को कंपनी की इंफॉर्मेशन मतलब आप कलेक्ट कर सकते हो. तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कंपनी एनालिसिस कवर्स द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ स्टडीज: फाइनेंशियल रेशियोज स्पेशली, अर्निंग एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड इनोवेशन. ये चार हमारे पार्ट्स हैं जो अब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें से मेजर पार्ट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा होता है? अर्निंग एनालिसिस, जिसके अंदर हम बेसिकली फाइनेंशियल रेशियोज डिस्कस करते हैं. ठीक है. ये बेसिकली थोड़ा सा थ्योरी पार्ट रहता है इसमें.
ठीक है, लेकिन कुछ जैसे आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन एमबी के स्टूडेंट्स हैं तो वहां पर इसमें न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं। तो देखिए फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस में भी फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द कंपनी, वेदर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, अर्निंग रेशियोज। तो वो किसके बेसिस पर होती है? हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। तो देखिए द फाइनेंशियल रेशियो और अकाउंटिंग रेशियो इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. These ratios can be calculated using balance sheet, income statement data. It covers the analysis of profitability, liquidity, solvency and efficiency level of the company. तो अब हम एक एक करके इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए फाइनेंशियल रेशियो में जैसे आपको बताया अर्निंग एनालिसिस हो गया जिसको हम प्रॉफिटेबिलिटी भी बोलते हैं, लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज। अब इसके अंदर कुछ पार्ट्स होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स से सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट अर्निंग एनालिसिस और प्रॉफिटेबिलिटी। अर्निंग एनालिसिस मींस हियर वी मोर फोकस ऑन व्हाट आर द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। उसके बेसिस पर हम कौन कौन सी रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमारे को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी। तो देखिए earning analysis is an important component of the company analysis because future cash inflows from an equity share depends to a great extent on earnings of the company. A company's overall profitability may be analyzed using operating profit margin, ROCE, return on capital employed, return on asset, return on investment and net profit margin. तो ये कुछ रेशियोज हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। बिकॉज कोई भी अगर इन्वेस्टर होता है जो शेयर खरीदना चाहता है वो ROCE और ROE जरूर चेक करता है कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना रिटर्न मिल रहा है प्रॉफिट्स में से, अर्निंग्स में से। तो देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी इज दैट पार्ट ऑफ टोटल अर्निंग्स ऑफ द कंपनी विच बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर. It is calculated by dividing profit after tax and preference dividend by amount of equity shareholder fund और net worth. Net worth में कई बार वो equity share capital plus reserves and surplus को भी count कर लेता है. Return on equity indicates equity shareholders are getting adequate return on their funds or not. तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब भी इक्विटी शेयर होल्डर की बात होती है तो वो ROE जरूर चेक करता है। इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100। ठीक है, अगर ROE अच्छा होगा तो इट मींस जो कंपनी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रही है। ये हमें किसमें हेल्प करता है? टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी, इट इंडिकेट्स एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी, इट इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट कंपनीज जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, और इट रिक्वायर्स अ केयरफुल इंटरप्रिटेशन। तो ये इट ओनली टॉक्स अबाउट रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, इसलिए टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस का भी डिविडेंड माइनस करने के बाद हम निकालते हैं कि ऑन एन एवरेज परसेंटेज की फॉर्म में इन्वेस्टर को क्या रिटर्न मिल रहा है। इसी के बाद सेकंड आती है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर रिफ्लेक्ट्स कि 1 रुपए, आप ये भी कह सकते हैं एक शेयर पर आपने कितना रुपया अर्न किया, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो ये निकलता कैसे है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा ROE, वहां पर परसेंटेज में आता है क्योंकि हम वहां पर डिवाइड किससे करते हैं? शेयर होल्डर्स फंड से। यहाँ पर हम किससे डिवाइड करते हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो जितना अर्निंग पर शेयर ज्यादा होगा इट मींस उतना रिटर्न इक्विटी शेयर होल्डर को क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो देखिए अर्निंग पर शेयर इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड by total number of outstanding shares of the company. Hence, it shows how much amount per equity share of the company is earned per equity share of the company. It is easy to understand than any other ratio, and increasing EPS shows relative strength of the company. ठीक है, इसका फॉर्मूला वही है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। जैसे वहां था डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, यहाँ आएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये हमें किस चीज में हेल्प करता है? प्रॉफिटेबिलिटी पर शेयर में, इन्वेस्टर को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, अगेन परफॉर्मेंस कंपैरिजन में हेल्प करता है, और हम इक्विटी शेयर्स की वैल्यू को इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे को हेल्प करता है इस चीज के लिए। So now let us move further.
थर्ड पार्ट इन दिस कम्स प्राइस अर्निंग रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम पीई रेशियो भी बोलते हैं। पीई रेशियो क्या इंडिकेट करता है? रिलेटिव वैल्यूएशन ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी, कि शेयर ऑफ द कंपनी बेसिकली, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर रहा हूं। मार्केट प्राइस पर शेयर दैट इज एमपीएस अपॉन ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो मार्केट प्राइस ऊपर है, अर्निंग पर शेयर नीचे है। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी मार्केट प्राइस और अर्निंग में क्या रिलेशनशिप है ये शो करता है। तो देखिए पीई रेशियो इंडिकेट्स द रिलेटिव वैल्यूएशन ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी इन द स्टॉक मार्केट। अ हाई पीई रेशियो इंप्लाइज मार्केट इज ऑप्टिमिस्टिक, बिकॉज मार्केट का प्राइस ज्यादा है इन रिलेशन टू अर्निंग, तभी पीई रेशियो ज्यादा आएगी। बट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द ग्रोथ ऑफ द कंपनी एंड हेंस इज पेइंग अ प्रीमियम और हाई प्राइस टू बाय द शेयर, क्योंकि ऐसा है कि इन्वेस्टर्स को ऑप्टिमिज्म है कि अगर इसका मार्केट प्राइस ज्यादा है इसकी अर्निंग से, क्योंकि कंपैरेटिवली, तो इसका मतलब इस कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होगा, अच्छा होगा, तभी इन्वेस्टर क्या है, प्रीमियम प्राइस पे कर रहे हैं इस शेयर को बाय करने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है मार्केट में नॉर्मलीज होती हैं या ग्लिचेस होते हैं, तो बहुत ज्यादा पीई रेशियो भी कई बार क्या होता है, डेंजरस होता है, बिकॉज वो क्या शो करता है कि कंपनी जो है वो ओवर प्राइस्ड है, मे बी ड्यू टू रूमर्स, मे बी ड्यू टू बैड एनालिसिस, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो पीई रेशियो ज्यादा होना अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा होना भी डेंजरस है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, however a very high PE ratio of the company share may also mean that the shares are overpriced in the market and vice versa। फॉर्मूला मैंने आपको उसका बता ही दिया, मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। अगेन वैल्यूएशन स्टॉक में हेल्प करता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल, तो ये कंपैरिजन में बहुत हेल्प करता है, इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस को मीट करने में हेल्प करता है, और हमें मार्केट सेंटिमेंट्स के बारे में बताता है। ये मैंने बुलेट्स आपको यहाँ बताए हुए इसमें। नेक्स्ट रेशियो इसी की एक्सटेंशन है, पीईजी रेशियो, दैट इज प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। भाई हम इसके अंदर ग्रोथ पैरामीटर भी इंक्लूड कर लेते हैं। भाई मैं कहता हूँ पीई रेशियो में बताती है मार्केट प्राइस पर शेयर और अर्निंग पर शेयर में क्या रिलेशन है, लेकिन हम कहते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ग्रो करेगी, तो उस ग्रोथ के रिलेशन में हमारे को क्या डिसीजन मेकिंग लेना चाहिए, तो वो हमें बताता है पीईजी रेशियो, पीईजी रेशियो। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ अ स्टॉक इज डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इट्स अर्निंग over a given time period is known as price earning to growth ratio or PEG ratio, a more comprehensive view than the more conventional PE ratio। अगेन भाई देखो ये थोड़ा एडवांस है, बिकॉज इसके अंदर वी आर कंसिडरिंग द ग्रोथ रेट ऑल्सो। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है कन्वेंशनल पीई रेशियो इज सेट टू बी प्रोवाइडेड बाय पीईजी रेशियो which is used to calculate stock valuation while also accounting for companies anticipated earnings growth। ठीक है, the ideal PEG ratio is less than 1 which indicates a business is comparatively cheap। अगर PEG ratio 1 से कम है तो it means it is a good investment and you can buy that share। फॉर्मूला इसका यही है, पीई रेशियो अपॉन एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन अर्निंग्स। ठीक है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन अर्निंग्स, तो ये हमें ग्रोथ एडजस्टेड वैल्यूएशन में हेल्प करता है, हमें आइडेंटिफाई करता है कि वेदर द शेयर्स आर अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। ठीक है, ये लिखा ना, आइडेंटिफाई द अंडर वैल्यूएशन स्टॉक्स इंडिकेट्स ओवर वैल्यूएशन, अगेन अ कंपैरिजन टूल। ठीक है, बिकॉज इट इज सिमिलर टू पीई रेशियो ओनली, बट अगेन इंक्लूडिंग द ग्रोथ पैरामीटर। Then fifth ratio in this comes is book equity to market equity, BE upon ME। तो देखिए ये भी एक रेशियो है, जनरली ये हमारे को हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई द रिलेटिव वैल्यूएशन ऑफ द शेयर। देखिए सारी जो रेशियोज है ना, ये हमें रिलेटिव वैल्यूएशन बताती हैं शेयर की, बट सबका अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है। अब ये बिल्कुल सिंपल रेशियो है कि कंपनी का बुक वैल्यू कितना है शेयर का, और आज उसका मार्केट इक्विटी वैल्यू क्या है, उसके बेसिस पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बाय मार्केट प्राइस। It must be noted that book value per share is the net asset value per share। B upon ME ratio indicates the relative valuation of the share in the market, in the stock market। A high book equity to market equity ratio implies that market is pessimistic। Pessimistic मतलब ये डाउनवर्ड साइड शो कर रहा है, नेगेटिव शो कर रहा है। ऑप्टिमिज्म होता है होपफुल। इट मींस अगर आपका हाई बीई रेशियो मतलब आपका मार्केट इक्विटी बहुत ज्यादा है और बुक वैल्यू बहुत कम है, इट मींस इट इज अ पेसिमिस्टिक अप्रोच दैट
the investors is not hopeful or does not have any positive attitude towards your share. तो देखिए, और मे बी ड्यू टू आपका ग्रोथ रेट अच्छा नहीं होगा, तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज. तो देखिए इसमें लिखा हुआ है a high ratio implies that the market is pessimistic about the growth rates of the company and hence its shares are being traded at a low price in the market. However, a very high PE ratio of the company may company share may mean shares are underpriced in the market. ठीक है, तो ये बेसिकली वो उसी की एक्सप्लेनेशन शो कर पी रेशियो जैसी. तो इसका फॉर्मूला है बुक वैल्यू पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर. तो ये प्रॉफिटेबिलिटी पर शेयर बताता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, कंपैरिजन एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में. बट अगेन हम इसको मतलब इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है इस रेशियो को पर्टिकुलरली, बट अभी कुछ टाइम से ये कुछ ट्रेंडिंग रेशियोज में आने लगी है. बिकॉज कंपनी कई बार कहती है कि हमारी बैलेंस शीट में तो बुक वैल्यू जो है वो बहुत कम है, बट मार्केट वैल्यू शेयर की बहुत ज्यादा है. तो ये जनरली क्या होता है कि आप इसका कहते हो रिकंस्ट्रक्ट करो, आप रीवैल्यू करो. बिकॉज ऐसा नहीं कि उसकी 1 रुपए वैल्यू और आज वो 10,000 रुपए का शेयर है. तो कम समटाइम्स द गवर्नमेंट और समटाइम्स द ट्रिब्यूनल ऑल्सो आस्क और मे बी द आरबीआई ऑल्सो आस्क और यू कैन से रेगुलेटरी बॉडी ऑल्सो आस्क to redefine your share, to reprice the share. So now let us discuss another ratio or another kind of a point, that is dividend policy of the firm. See, the part of the profit जो हमने रिजर्व्स की फॉर्म में नहीं रखा, उसको हमने डिविडेंड की फॉर्म में किसको पे कर दिया, इन्वेस्टर्स को या शेयर होल्डर्स को. इसमें हम ये चेक करते हैं कि हम पर रुपीज डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं, डिविडेंड पर शेयर कितना है, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है. पे आउट रेशियो मतलब भाई आपने अर्न किया 100%, तो आप उसमें से 30% डिविडेंड दे रहे हो, 20% डिविडेंड दे रहे हो, दैट वुड बी डिविडेंड पे आउट रेशियो. क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप डिविडेंड के रेट्स में ग्रोथ कर रहे हो या नहीं कर रहे. ये हमने वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स आप चेक करना, मैंने प्लेलिस्ट में चैप्टर ऐड किया हुआ है सिक्योरिटी एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के प्लेलिस्ट में. वहां पर आपको मैंने इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवाए, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे. तो देखिए, जनरली द टोटल अमाउंट ऑफ अर्निंग्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड. अ पार्ट ऑफ द अर्निंग्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड्स and a part is retained in the company for further investment. Once the earnings have been estimated, it is important to analyze the dividend policy of the company so as to arrive at a fair valuation of equity shares. इसमें हम कंसिडर करते हैं डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो, ग्रोथ रेट इन डिविडेंड्स. Growth rate in dividends is the rate at which dividends have been growing or are expected to grow in future. भाई जनरली हम एज्यूम करते हैं, जिसके अंदर हमने जीरो ग्रोथ मॉडल पढ़ा था, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल होता है डिविडेंड्स का, और एक होता है मल्टीपल ग्रोथ मॉडल. ग्रोथ रेट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड्स फ्रॉम द शेयर. तो ये इसका पॉइंट था. तो डीपीएस का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर का टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. अगेन ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिससे शेयर होल्डर अपनी इनकम मेजर करते हैं. ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है टू मेक इन्वेस्टमेंट. ये एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंडिकेटर है जो इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है अगेन डिसीजन मेकिंग. और ये बताता है कि कंपनी का एटीट्यूड क्या है, व्हाट इज द इनसाइट ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स इट्स डिविडेंड पॉलिसी. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था वेयर वी हैव टॉक्ड अबाउट these particular ratios about related to earnings. Second comes as liquidity. Liquidity basically आपको पता ही है, जनरली लिक्विडिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू कैश. ठीक है, जिसके अंदर हमने करंट रेशियो और क्विक रेशियो आपने बेसिक अकाउंट्स में भी पढ़ा हुआ है. करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी. अगेन हम ये शो करते हैं कि जितनी हमारी करंट लायबिलिटी है उससे ट्वाइस हमें किसको होल्ड करना चाहिए, करंट एसेट्स को. वो हमारी फॉर्म में लिक्विडिटी इंश्योर करता है. दूसरा रेशियो होता है क्विक रेशियो. क्विक रेशियो इज सिमिलर टू द करंट रेशियो. इसमें दो फॉर्मूले दिए हुए हैं, कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस अकाउंट रिसीवेबल्स अपॉन करंट लायबिलिटी. लेकिन अगर आपको पता होगा क्विक रेशियो का एक और फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. ये आप अकाउंट्स में भी कई बार कर चुके हैं. बिकॉज जनरली हम ऐसा करते हैं कि स्टॉक को क्यों माइनस करते हैं क्विक रेशियो में, क्योंकि या जिसको हम लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं, क्योंकि स्टॉक की डिमांड हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और स्टॉक जब तक नहीं बिकेगा आपका पैसा रियलाइज नहीं होगा. इट कैन टेक इवन फ्यू डेज, इट कैन टेक इवन फ्यू मंथ्स और मे बी एन ईयर. तो इसलिए क्विक रेशियो होता है कि विद इन 3 मंथ्स जनरली हमारा जो
एसेट है वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो वो होगा क्विक एसेट। और जनरली हम करंट एसेट्स के बारे में ये बोलते हैं दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर, तो करंट एसेट्स आर दोज। ठीक है, तो लिक्विडिटी के लिए हमें ये दो रेशियोज कैलकुलेट करनी पड़ती हैं जो हमें बताती है अबाउट व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी इन नियर फ्यूचर। ठीक है, करंट रेशियो को आइडल रेशियो 2:1 होती है और क्विक रेशियो को आइडल रेशियो 1:1 होती है, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 और 1 लिखा हुआ है। क्विक रेशियो का दूसरा नाम एसेट टेस्ट रेशियो भी होता है, इसको हम लिक्विड रेशियोज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट लिक्विडिटी। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू कैन रीड इट व्हाइल टेकिंग अ पॉज। ठीक है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो वेयर वी मेजर अबाउट debt equity ratio. ठीक है, we make about you can say we take about debt to total capital ratio जो हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को हेल्प करती है मेजर करने में। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू असेस लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ कंपनी। It can be done with the help of debt equity ratio or capital gearing ratio. A high level of debt equity ratio over past years makes a company more vulnerable and increases the probability of financial distress or vice versa. हाई डेट इक्विटी रेशियो का मतलब क्या है? आपने डेट अपॉन इक्विटीज का फॉर्मूला होता है, आपने डेट ज्यादा ले रखा है, लोन ज्यादा ले रखा है, तो अगर आपने लोन ज्यादा ले रखा होगा इट मींस कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा है, और ऐसी कंपनीज क्या होती है, वल्नरेबल होती हैं फॉर बैंक्रप्सी। तो इसलिए हम कहते थे, जब आप पहले भी पढ़ते थे, डेट इक्विटी रेशियो कितनी होनी चाहिए, 1:1, 50% डेट 50% इक्विटी। तो देखिए, इसके लिए जब हम चेक करते हैं डेट ज्यादा है या नहीं है, तो हम मेजर करते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज किसको बताता है कि कंपनी में फाइनेंशियल रिस्क कितना प्रेजेंट है। और आप प्लीज ये याद रखिए, जितना ज्यादा डेट होगा कंपनी के अंदर उतना फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा होगा, तो फाइनेंशियल लिवरेज भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। देन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ये हमारे ऑपरेशंस को बताती है, जिसके अंदर हम टर्नओवर रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। बेसिकली अगर आपकी ये रेशियोज ज्यादा हैं, बिकॉज टर्नओवर से ज्यादा हैं, हम फॉर्मूला कैसे यूज करते थे इसके अंदर, जैसे लेट्स से डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला यूज करते थे नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, नेट सेल्स अपॉन एवरेज वर्किंग कैपिटल। तो ये क्या शो करता है, जितनी ज्यादा ये वैल्यू आएंगी, क्योंकि ये रेशियोज टाइम्स में हम लिखते थे, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, तो जितनी ज्यादा ये रेशियोज की वैल्यू आएंगी उतनी ज्यादा कंपनी में क्या होगी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये हमारे को बताती है ऑपरेटिंग रेशियोज इन विच वी कैलकुलेट वेरियस टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर इज नथिंग बट सेल्स ओनली। ठीक है, देन अभी आपको बताया कि फाइनेंशियल लिवरेज जो फाइनेंशियल बर्डन मेजर करती है, इसी तरीके से ऑपरेटिंग लिवरेज होती है जो हमारे को हेल्प करती है इन मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि कई बार क्या होता है, कंपनी के फिक्स खर्चे बहुत ज्यादा हैं, इतना उनका रिवेन्यू नहीं है, तो अगर आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस ज्यादा है, उतना रिवेन्यू नहीं है, सो इन दैट केस आपका ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा होगा। और फाइनेंशियल रिस्क कब ज्यादा होगा, जब कंपनी में डेट ज्यादा होगा। तो ये ऑपरेटिंग लिवरेज का हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कई बार फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, द हायर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज द ग्रेटर इज द ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क को हम बिजनेस रिस्क भी बोलते हैं ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल लिवरेज ऑन द अदर हैंड measures the level of financial risk in a company. It arises due to presence of fixed financial cost in the cost structure of the company, that is use of debt capital. और ऑपरेटिंग लिवरेज किसके बारे में मेजर करता है, इफेक्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट। अगर आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो आपके ऑपरेटिंग रिस्क क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ज्यादा है। तो दोनों लिवरेज ज्यादा होना डेंजरस है एक तरह से। देन ये सारा हमारा पार्ट था फाइनेंशियल रेशियोज का, जिसके अंदर हमने लॉन्ग टर्म रेशियो, अर्निंग रेशियो, ये सब डिस्कस किया। अब उसके बाद फर्स्ट रेशियो तो फाइनेंशियल पार्ट था, अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कुछ, मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो लेट अस सी। तो देखिए सेकंड पॉइंट इसके अंदर आया मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फर्स्ट पॉइंट हमने फाइनेंशियल रेशियो बहुत सारी डिस्कस की, उसके अलग अलग पार्ट थे। तो देखिए जब भी आप किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो आप चेक करते हैं कि जो उसकी मैनेजमेंट है, क्या उसकी क्या मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट है,
या नहीं है, क्या उनके जो डिसीजन मेकिंग है वो प्रॉफिटेबल हैं या नहीं है। तो ये हम चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड जो उन्होंने प्रॉफिटेबल, अभी आप कह सकते हो, प्रोजेक्ट्स या कंपनी जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया। प्लस इसके साथ साथ आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स भी चेक करते हो कि भाई क्या वो उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये भी एक पैरामीटर है जहां पर आप कंपनी को एनालाइज कर सकते हो। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, इट इज important to examine the managerial competence and corporate governance in a company. A highly profitable company may not be a good company to invest if its management is not competent and corporate governance standards are not adequate. तो इट मीन्स उनकी कॉम्पिटेंसी लेवल भी चेक करनी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स भी चेक करने हैं, और और आपको ये भी चेक करना है कि वो प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस या बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है या नहीं कर रही। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट हमारा आता है, दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड इनोवेशन। भाई देखिए जनरली अगर टू कंपनीज सेलिंग द सेम प्रोडक्ट, जैसे हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट होता था, जहां पर आपके प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन ही नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट में एक नया, क्या कंपनी टाइम टू टाइम नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आ रही है, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज की जो ब्रांडिंग और आप जो कहते हो मार्केट शेयर होता है, वो इन्वेस्टर को हायर प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प करता है। तो देखिए, टू कंपनीज में सेल सेम प्रोडक्ट सच एज डिटर्जेंट, बट द कंपनी विच डिफरेंशिएट इट्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम other products available in the market and engages itself in product innovation is a good investment option. अब देखिए, जैसे अब डिटर्जेंट का इन्होंने एग्जांपल लिया, कुछ हैं जो प्रीमियम ब्रांड्स में आप कह देते हो आ जाते हैं, जैसे एरियल हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया। कुछ हैं जो मास मास पीपल के लिए बने हैं, जैसे घड़ी, जैसे दे हैव अ टैगलाइन, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, जिसके अंदर उनका प्राइस भी कम है और वो क्लेम करते हैं कि उनकी क्वालिटी भी क्या है, अच्छी है। तो ऐसे क्या होता है, अब जैसे जैसे शाहरुख खान हैज बीन ब्रॉट इन द टाइड एड, ठीक है। तो दैट इज समथिंग विच दे ट्राई टू क्रिएट देयर डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये भी आपको टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है। तो दिस वुड बी हेल्पफुल इन कंपनी एनालिसिस। तो फर्दर, क्रिएशन ऑफ ब्रांड ऑल्सो हेल्प्स अ कंपनी इन रीपिंग हायर प्रॉफिट्स। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे ये हमारे कंपनी एनालिसिस के लिए थे। लेकिन अब कंपनी के एनालिसिस आपने पढ़ लिया, जिसके अंदर आपने फाइनेंशियल रेशियोज पढ़ा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स पढ़ा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पढ़ा, लेकिन इनकी टेक्निक्स कौन सी हैं वो हमें चेक करनी है कि हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो इसमें 5 टेक्निक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ: कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, इनफ्लो स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें हेल्प करती है। यहाँ पर हमें 2 या 2 से ज्यादा ईयर्स का बैलेंस शीट का डेटा गिवन होता है। हम उन बैलेंस शीट के डेटा को कंपेयर करते हैं और हम चेक करते हैं एक एब्सोल्यूट टर्म्स में और वो एक परसेंटेज टर्म्स में कि क्या कोई इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो वो हमें हेल्प करता है। तो देखिए, in the comparative statement, balance sheet figures are provided for more than a year. The comparative financial statement provides a time perspective to balance sheet figures. The annual data are compared with similar data of previous years, either in absolute, absolute मतलब मैं कहता हूँ कि पिछले साल से इस साल का प्रॉफिट 20 लाख से बढ़ गया, तो ये एब्सोल्यूट टर्म हो गई। और अगर मैं परसेंटेज के बारे में बात करूं, तो लेट्स से वो कहता है 20% परसेंटेज या प्रॉफिट बढ़ा, क्योंकि पिछले साल जो हमारा प्रॉफिट था वो लेट्स से कितना था, तो उसमें 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है। देन सेकेंड हो गया ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस जनरली आपने ये इंडेक्स नंबर वगैरह वाले चैप्टर्स में भी किया है पहले, कि जहां पर हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बेस ईयर। तो देखिए, हेयर परसेंटेजेस आर कैलकुलेटेड विद द बेस ईयर। दिस वुड प्रोवाइड इंसाइट इनटू द ग्रोथ और डिक्लाइन ऑफ सेल और प्रॉफिट ओवर द ईयर्स। Sometimes sales may be increasing continuously and the inventories may also be rising. Likewise, sales may have an increasing trend, but profits may remain same. Here, the investor has to look into the cost and management efficiency of the company. तो आई होप आपको पॉइंट लैंग्वेज से ही समझ में आ गया कि अगर कई बार क्या होता है, कंपनी का ना सेल्स तो बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, तो उस केस में कंपनी को क्या चेक करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ सेल्स बढ़ रहा है, उसमें चेक भी करना चाहिए कि प्रॉफिट का भी ट्रेंड इंक्रीजिंग है या नहीं है। तो अगर आप कहते हो कि प्रॉफिट का ट्रेंड इंक्रीजिंग नहीं है, सेम है, तो उस केस में आप उनका कॉस्ट डेटा चेक कीजिए और आप वहां पर चेक कीजिए कि क्या कॉस्ट में भी इंक्रीजिंग ट्रेंड तो नहीं है। तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल इन वाइल एनालाइजिंग इट। थर्ड, फंड फ्लो एनालिसिस। फंड फ्लो एनालिसिस जनरली आप कह सकते हो कि एग्जैक्ट पिक्चर नहीं देता फाइनेंशियल पोजीशन की,
बट ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है विद रिगार्ड टू कि सोर्सेज ऑफ फंड्स कौन कौन से थे, पैसा कहाँ से आया और पैसा कहाँ लगा। तो ये हमारे को फाइनेंशियल कंडीशन स्टडी करने में हेल्प करता है। तो देखिए, the balance sheet gives a static picture of the company's position on a particular date. It does not reveal the changes that have occurred in financial position of the unit. Unit here means company over a period of time. These items of information are provided in the fund flow statement. It is a statement of sources and application of funds. It highlights the changes in the financial condition of the business enterprise between the two balance sheet dates. तो बेसिकली ये आपको, जैसे आपने 11th-12th में भी कभी किया होगा चैप्टर अकाउंट्स में, तो वहां पर ये आपको ये बताता था कि दो बैलेंस शीट की जो बैलेंस शीट हमें अलग अलग ईयर्स की गिवन है, तो उसके अंदर चेंजेस बताता है कि फाइनेंशियल कंडीशंस में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट ना जनरली हमको परसेंटेज में डेटा शो करती है विद रिस्पेक्ट टू टोटल एसेट्स एंड यू कैन से एक्सपेंसेस और लायबिलिटी। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कॉमन साइज बैलेंस शीट शोज द परसेंटेज ऑफ ईच एसेट and to the total asset and each liability item to total liabilities. Similarly, a common size income statement shows each item of expense as a percentage of total net sales. With common size statement, comparison can be made between different size firms belonging to the same industry. जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल लिया था कि भाई कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होगा, सेम इंडस्ट्री की दो कंपनी जैसे इन्फोसिस एंड विप्रो, यू कैन से HCL, तो हमने दो सारी क्या ले ली इसके अंदर, IT कंपनीज ले ली। तो यहाँ पर हमें क्या शो करता है, वो कंपैरिजन में हेल्प करता है विद रिस्पेक्ट टू ईच एसेट क्लास, एसेट्स को एसेट से और लाइबिलिटी को लाइबिलिटी से और एक्सपेंसेस को विद रिस्पेक्ट टू सेल्स। फॉर द सेम कंपनी ओवर द ईयर्स कॉमन साइज स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड। एंड द लास्ट इन दिस कम्स इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरली आपको शो करता है कहां से कंपनी को कैश इनफ्लो हो रहा है और कहां कहां कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट किया है, लगाया है, पे किया है। सो दैट वुड बी कैश आउटफ्लो। ये बड़ा फेमस चैप्टर है आपके अकाउंट्स में, आपने 11th-12th में आपने इसको डिस्कस किया, फिर आपने बीकॉम के सेकंड फर्स्ट ईयर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में चैप्टर दोबारा पढ़ा, तो इसका मीनिंग मोस्ट प्रोबेबली आपको क्लियर होगा। तो देखिए, द इन्वेस्टर इज इंटरेस्टेड इन नोइंग द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द एंटरप्राइज। द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट, income statement and some additional information. It can be either prepared in vertical form or in horizontal form. Cash flows related to operations and other transactions are calculated. जैसे आप कहते थे cash flow from operating activity, cash flow from investing activity, cash flow from financing activity. तो investor generally cash flow statements भी चेक करता है कि कंपनी की कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट है और वहां से उसको पॉजिटिव कैश फ्लो हो रहा है या नेगेटिव कैश फ्लो हो रहा है। The statement shows the causes of changes in cash balance between two balance sheet dates. With the help of this statement, the investor can review the cash elements over an operating cycle. तो ये हमारा जो था sources और आप कह सकते हो techniques हैं to evaluate. This video is quite long, but I think it would be more helpful. इसमें बहुत अच्छा कंटेंट था और बहुत important भी है। So thank you so much. Please like, subscribe and share our channel with your friends and also hit the like button, bell icon in the YouTube channel so that you can get the notification of new videos. Please do comment if you have understood the topic and which subject you want me next to teach. You also mention that in comment box. Thank you so much.